Good morning, everyone. Once again, I am here with an editorial that is very important for your examination because this topic is of international interest, and topics of international interest or issue are very important for our exam. Hence, this is my request to you all that you must watch this editorial and try to understand the hidden meaning of this particular editorial. My dears, this is known to everyone that the Prime Minister of India, Honorable Narendra Modi, is on visit to a country called Japan. He has gone over there to attend a Quad summit that is organized in different countries of the members of that very Quad. Before you understand this topic, you must know the meaning of Quad and history of Quad. Quad, Q-U-A-D. You can see that Quad, Q-U-A-D. Quad stands for four. Quadrilateral, you must know, means it forms a structure where four countries are there. First we call US, next we have India, and next one is Australia, and the country where it has been organized this time is Japan. It may be asked in your examination as a common error that Quad Summit for 2022 was organized in which country? Then you will have to answer Japan. So Japan has turned into the center of Quad Summit this time, and the Prime Minister of India has also visited as the representative of India. Now, the matter of great discussion is that during Quad Summit, there was a platform that has been in vogue for a long time, but this time it has been given a proper shape by US President. Let me tell you that IPEF stands for Indo-Pacific Economic Framework. It's a new organization which had been discussed or being discussed for a long time, and this time it has been given a proper shape by Biden during this very meeting only. So let me tell you one thing more that about this Quad. Quad came into existence in 2007. 2007 में आया था existence में. Now it has been long time since it is working well, and now what are the fruitful results that we have got from this very summit that we shall discuss in this particular editorial. Hence, let me start this editorial with the heading, this is caution and clarity. Caution you know well, सावधानी, and clarity means स्पष्टता. Means it has been said by the writer of this editorial that before India enter itself into any kind of agreement, he should be cautious, यानी उसको सावधानी बरतनी चाहिए, और उस एग्रीमेंट में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? You will come to know after you go through this. On the US-led Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. इस एडिटोरियल में बात करेंगे कि यूएस के द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क, ठीक है, किसके लिए? प्रोस्पेरिटी के लिए. यानी यूएस दावा करता है कि अगर आपको समृद्धि चाहिए तो इंडो पैसिफिक यानी वैसा एरिया या कंट्रीज़ जो इंडो पैसिफिक यानी जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के किनारे या उसके आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनके सहयोग से कर सकते हैं. तो यूएस के प्रेसिडेंट का एक बहुत ही दूरगामी सपना था कि जो इंडो पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज़ हैं उनका एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बने, एक ढांचा बने. किस लिए? प्रोस्पेरिटी के लिए. तो यूएस के द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो कि एक प्रोस्पेरिटी समृद्धि के लिए बनाया गया है, इसमें पार्ट लेने से पहले, इसका भाग बनने से पहले भारत को सावधानी के साथ इसमें स्पष्टता की मांग करनी चाहिए. ये कहा गया है एडिटोरियल के राइटर के द्वारा. यानी
जो अमेरिका की चाल है या चाल भी हो सकता है, उसमें फंसने से पहले आपको इसको लेकर के क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। द IPEF स्टैंड फॉर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इज़ इन इट्स नेशंस का मतलब होता है अपने शुरुआती स्तर में होना, यानी अभी बेचारा ये जन्म ही लिया है। तो IPEF एक नया फ्रेमवर्क है, ये अभी क्या है, अपने नेशंस में है, यानी शुरुआती दौर में है। और ये जो IPEF है, रिलाइज मोर ऑन प्रॉमिस, ये सब ज़्यादा किस पे आधारित है, ज़्यादा ये प्रॉमिस पे आधारित है, प्रोस्पेक्ट पे नहीं। यानी प्रॉमिस इसमें ज़्यादा किया गया कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन क्या संभावनाएं हैं इसकी बात नहीं करता है। तो प्रोस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल आउटकम्स, टेंजिबल का मतलब होता है जटिल, आउटकम्स का मतलब होता है परिणाम। यानी IPEF है वो अभी शुरुआती स्तर में है, और ये ज़्यादा किस पे रिलाई करता है, किस पे भरोसा करता है, प्रॉमिस पे, किसके तुलना में, कि क्या इसके आउटकम्स होंगे उसके तुलना में। समझ में बात आ गई होगी आपको। वर्ड आप नोट करते जाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, और जब ये एडिटोरियल ख़त्म हो जाएगा तो फाइनली हम लोग 2 कॉमन एरर्स जो कि इसी पे आधारित होगा सॉल्व करेंगे। तो IPEF अभी शुरुआती दौर में है और ज़्यादा किस पे विश्वास करता है, प्रॉमिस पे, किसके कंपेयर में, प्रोस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल आउटकम्स, यानी जो इसके जटिल परिणाम आएंगे उसकी संभावनाओं पे कम, प्रॉमिस पे ज़्यादा ये बेस्ड है। इन अ सडन डिसीजन नॉट प्रीवियसली इंटीमेटेड, एक अचानक से डिसीजन लेकर के जो कि पहले से इसके बारे में जानकारी नहीं थी, यानी नॉट प्रीवियसली नोन कह सकते हैं। तो इंटीमेटेड का मतलब होता है नोन, यानी पहले से इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो एक अचानक से फैसला लेकर के जिसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, इंडिया बिकेम वन ऑफ 13 नेशन इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेड बाय द US। भारत भी IPEF जिसमें 13 मेंबर हैं उसका एक सदस्य बन गया, जिसकी नेतृत्व कौन कर रहा है, US। ये कब की बात है, ऑन मंडे, एज प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन अनवेल्ड प्लान फॉर द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोस्पेरिटी। यानी जब जो बाइडेन अनवेल कर रहे थे प्लान, यानी उजागर करना, अनवेल का मतलब क्या होता है, उजागर करना, तो अपने प्लान को उजागर कर रहे थे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तौर पे प्रोस्पेरिटी के लिए, तब भारत, ऑन मंडे की बात है, मंडे को 13 मेंबर में से एक भारत भी एक सदस्य बन गया। ठीक है, यानी एक नया फ्रेमवर्क बना है IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। हालांकि इसकी चर्चा लंबे समय से है, लेकिन इस बार इसको औपचारिक तौर पे यहाँ पे ऐलान कर दिया गया, अनवील कर दिया गया है जो बाइडेन के द्वारा। अब भारत भी अचानक से इसका एक सदस्य बन गया। द इनिशिएटिव इज टाउटेड एज अ सब्सटेंशियल स्टेप बाय द US। टाउट का मतलब क्या होता है, टाउट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए फुसला लेना, मना लेना, यानी परसुएड करना। ये कहते हो कि इसका बहुत सारा फ़ायदा है, ये समझाते हो कि इसका बहुत आगे फ़ायदा होगा। तो ये जो शुरुआत है वो एक सब्सटेंशियल मतलब रियल स्टेप, सब्सटेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, रियल कह सकते हो, एक सही कदम के तौर पे इसको प्रेजेंट किया गया है, किसके द्वारा, US के द्वारा। एज पार्ट ऑफ इट्स डिकेड ओल्ड पिवोट टू एशिया। और ये जो है वो एक लंबे समय से जो इसकी सोच थी कि पिवोट टू एशिया का मतलब क्या हुआ, कि एशिया का एक धुरी देश बनने का, यानी इम्पोर्टेंट पार्ट बनने का, इसके तहत ऐसा किया गया है अमेरिका के द्वारा। यानी अमेरिका का तो दबदबा है ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लेकिन खासकर एशिया में भी इसकी दबदबा हो। पिवोट टू एशिया यानी कह सकते हैं कि एक धुरी बने एशिया का। इसके तहत एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। एंड an attempt at putting some economic heft into its Indo-Pacific presence that has been on decline after its decision to quit the Trans-Pacific Free Trade Agreement। और US का एक और प्लान है
कि वो एक कोशिश करेगा कि कुछ इकोनॉमिक जो हेफ्ट है, हेफ्ट का मतलब भार, आर्थिक भार कहाँ पे लगाए, इंडो पैसिफिक के प्रेजेंस में, जो कि एक अभी फ़िलहाल डिक्लाइन पे है। अभी इस एरिया में जो अमेरिका है वो डिक्लाइन पे है। कब से? जब से पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, उसको छोड़ने का जब से डिसीजन लिया था अमेरिका ने, तब से यहाँ पे इसकी जो प्रेजेंस है वो डिक्लाइन पे थी और फिर से अपना प्रेजेंस बनाना चाहता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2017 में, मतलब अमेरिका कब छोड़ा? तो 2017 में। यानी 2017 के बाद जो अमेरिका की प्रेजेंस एशिया में है वो थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि जब से इसने ट्रांस पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को छोड़ा था। यानी उसी की भरपाई करने के तौर पे अब अमेरिका कोशिश कर रहा है IPEF का एक फ्रेमवर्क तैयार करने का। ऑफिसर्स से जो उनके अधिकारी हैं वो कहते हैं द IPEF फ्रेमवर्क हैज़ 4 पिलर्स। जो IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसके 4 मुख्य पिलर्स हैं, मीन्स स्तंभ हैं। कौन कौन से 4 हैं इसकी चर्चा यहाँ पे है। सप्लाई चेन रेजिलियंस, यानी सप्लाई चेन के ऊपर एक दूसरे पर आधारित रहेंगे। सप्लाई चेन आप समझते होंगे, चीज़ों को आदान प्रदान करने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए। क्लीन एनर्जी की बात कही गई है इसमें। डिकार्बोनाइजेशन, यानी कार्बन उत्सर्जन को रोकना। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 पिलर बताए गए। टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन एंड फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड, यानी एक विश्वास के तौर पे ट्रेड होगा, एक दूसरे पे आधारित होगा, एंटी करप्शन होगा, टैक्सेशन की बात होगी। ये सारे मुद्दे उठाए गए हैं इसके फ्रेमवर्क के अंतर्गत। यानी IPEF में कहा गया है कि 4 पिलर हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है कि पहले तो सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जाएगा, कार्बन के उत्सर्जन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होगी, टैक्सेशन और एंटी करप्शन चीज़ें के बारे में होगी, और फेयर डील होगा, यानी ट्रेड जो होगा एकदम फेयरली होगा। मिस्टर बाइडेन्स विजिट टू जापान एंड साउथ कोरिया। मिस्टर बाइडेन की विजिट मतलब समझ रहे हैं, जापान और साउथ कोरिया में। अटेंडेंस एट क्वाड समिट, और जो अटेंडेंस है मतलब आना कहाँ, क्वाड समिट में। आर हेल्मिंग द IP, हेल्मिंग का मतलब होता है शुरुआत करना, यहाँ पे नेतृत्व करना, ऑर्गेनाइज करना। द IPEF लॉन्च is also aimed at reassuring the eastern hemisphere about the US focus। यानी बाइडेन का जापान जाना, कोरिया जाना और क्वाड में समिट में आकर के यहाँ पे IPEF को ऑर्गेनाइज करना और लॉन्च करना, ये दर्शाता है, बताता है कि जो US है उसका एम क्या है। एम ये है कि फिर से वो एश्योर करना चाहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर को। ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहने का मतलब पूर्वी गोलार्ध जिसको बोलते हैं, और पूर्वी गोलार्ध में जो एरिया आएगा यानी कॉन्टिनेंट आएंगे वो हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वगैरह को सबको ये बताना चाहते हैं कि उनकी फोकस क्या है, यानी अमेरिका कहाँ फोकस कर रहा है, ये बताने का या ये फिर मैसेज देने का प्रयास किया गया। इंडियाज ज्वाइनिंग इज़ एन इक्वली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू इंडो पैसिफिक गोल्स। भारत का इसका पार्ट होना यानी इसको ज्वाइन करना, ये इसके जो कमिटमेंट है जो इसने किया था इंडो पैसिफिक के गोल्स को लेकर के, उसके तहत है। एंड टू ब्रॉडनिंग रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और ये क्यों किया गया है कि जो क्षेत्रीय इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है उसको और विस्तारित करने के लिए, ब्रॉडनिंग का मतलब विस्तारित करने के लिए किया गया है। पर्टिकुलरली आफ्टर इट वर्कड आउट ऑफ द 15 नेशन RCEP। अब तो पहले हम लोगों ने बात किया अमेरिका के बारे में, अमेरिका का क्या एम है। अमेरिका चाहता है कि एक धुरी देश के तौर पे भी आए एशिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो है ही। अब भारत की क्या इसकी इम्पोर्टेंस है IPEF का पार्ट बन करके। भारत चाहता है कि इस ऐसे संगठन का, पहले तो कमिटमेंट था भारत का कि इंडो पैसिफिक के गोल्स को लेकर के पॉजिटिव है। दूसरी बात वो भी चाहता है कि रीजनल कॉरपोरेशन यानी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बढ़े, जिसके लिए भी ये भारत इसके साथ आया। और ख़ासकर भारत के लिए इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि भारत पहले ही जो RCEP था, RCEP रीजनल कॉरपोरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उससे बाहर चला गया था। लिखा हुआ ना, इट वॉक आउट ऑफ 50 नेशन, यानी 15 देशों का RCEP था।
उससे बाहर निकल गया था। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट ऑल IPEF मेंबर्स, ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी IPEF मेंबर्स हैं अदर देन इंडिया एंड द US, भारत और US को छोड़ करके, आर द पार्ट ऑफ RCEP यानी रीजनल कॉरपोरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप के पार्ट हैं। यानी जितने भी IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के पार्ट हैं अभी, उसमें से 2 को छोड़ करके भारत और US, बाकी सभी जो देश हैं वो किस में हैं, RCEP में भी हैं। यानी RCEP जो होता है इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, यानी जो ट्रेड होता है उसमें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इट हैव चूज़न टू बी पार्ट ऑफ द US लेड इनिशिएटिव, इसके बावजूद भी भारत ने चुना है कि US के द्वारा जो लीड किया जाने वाला इनिशिएटिव है IPEF, उसका भारत भाग बनेगा। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग दैट फ्रॉम ऑल साइड्स, हाउएवर there are many aspects to the IPEF that bear further scrutiny। करा कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा था सारे तरफ से, इसके बावजूद भी अभी कई ऐसे पहलू हैं IPEF के, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के, जिसमें स्क्रूटनी यानी पूरी तरह से उसको जांचने और परखने की ज़रूरत है। भारत मेंबर तो बन गया है, लेकिन ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं जिस पे अभी जांच या उसको इवेलुएट करने की ज़रूरत है भारत को। Monday's launch only signals the willingness of the 13 countries to begin discussion on the contour। यानी जो मंडे को इसका लॉन्च हुआ IPEF का, वो केवल एक सिग्नल है, या फिर कह सकते हैं विलिंगनेस, मतलब इच्छा है 13 देशों की कि हम लोग इसके ऊपर बात करना शुरू कर दें। कॉन्टूर वर्ड का मतलब होता है, कॉन्टूर पढ़ेंगे इसको, कॉन्टूर का मतलब होता है इसके बाहरी रूपरेखा। इसके बाहरी रूपरेखा पे पहले चर्चा होगी। मच विल डिपेंड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्ट्रेस्ड ऑन हाउ इंक्लूसिव द प्रोसेस इज। और सबसे ज़्यादा इसमें डिपेंड ये करेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जोर दिया है, कि ये कैसे इंक्लूसिव हो सकता है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जिसमें सबकी भागीदारी हो, ठीक है। तो यानी अगर केवल अमेरिका अपनी मनमानी करता है तो अब तो एक सक्सेस नहीं हो सकता है, लेकिन सबको ले करके चलने का प्रयास होगा, तो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना आगे जाएगा। पहली बात तो ये तो इंक्लूसिव होना चाहिए। दूसरी, सेकंड, US ऑफिसर्स हैव मेड इट क्लियर दैट, US यानी यूनाइटेड स्टेट्स के जो अधिकारी हैं ये क्लियर कर दिए हैं कि इट इज़ नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी जैसे RCEP था, RCEP क्या है, रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें क्या था कि जो भी देश उसके मेंबर्स होते हैं उनके बीच फ्री ट्रेड होता था। लेकिन IPEF के बारे में US के द्वारा बोला गया है कि ये कोई ऐसा संगठन या फ्रेमवर्क नहीं है जिसके अंतर्गत एक फ्री ट्रेड या डील होगा। नॉर विल इट डिस्कस टैरिफ रिडक्शंस, और न ही इसके वजह से, टैरिफ का मतलब टैक्स होता है, टैक्स में कोई रिडक्शंस होगा। यानी हम लोग अपनी चीज़ों को दूसरे देशों में बेचते हैं, दूसरे देशों की चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं, तो उसमें टैक्स जो लगता है उसमें किसी प्रकार का रिडक्शन यानी कटौती नहीं होगी, और न ही किसी प्रकार का मार्केट एक्सेस को इंक्रीज किया जाएगा। राइजिंग क्वेश्चन अबाउट इट्स यूटिलिटी, लेकिन ऐसा कह करके US के ऑफिसर के द्वारा जो कहा गया कि किसी प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, किसी प्रकार का टैरिफ के रिडक्शन पे कोई डिस्कशन नहीं है, न ही आपको एक्सेस करने की छूट रहेगी मार्केट में, तो ऐसा कह करके इसने एक सवाल उठा दिया है कि फिर इसकी यूटिलिटी क्या है, ऐसा फ्रेमवर्क बनाने का उपयोगिता क्या है। यानी यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, यानी जब फ्री ट्रेड होगा ही नहीं, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे ही नहीं, टैरिफ में रिडक्शन होगा ही नहीं, तो फिर इसका औचित्य क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। शोन ऑफ द रेटरिक ऑफ इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, देयर मस्ट बी मोर क्लैरिटी ऑन द फ्रेमवर्क। कहा जा रहा है कि ये जो शोन है, शोन का मतलब यहाँ पे क्या है,
यानी यहाँ पे कहने चाह रहा है कि जो इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन के रेटरिक मतलब होता है भाषणबाजी से दूर, इसमें ज़रूरत किस बात की है? इसमें बात ज़रूरत है कि इसके फ्रेमवर्क को लेकर के क्लैरिटी का, यानी इसके बारे में लंबे लंबे भाषण तो दिए जा रहे हैं, रेटरिक है। रेटरिक का मतलब क्या होता है? रेटरिक का मतलब होता है जो आप भाषण देते हो, यानी बयानबाजी तो हो रही है, भाषणबाजी हो रही है, लेकिन इसके क्लैरिटी, इसके फ्रेमवर्क को लेकर के नहीं चर्चा है। ये पहले ज़रूरी है। द 4 पिलर्स ऑल्सो लेंड देमसेल्व्स टू सम कन्फ्यूज़न। ये जो 4 पिलर बताया गया था वो भी क्या है, अपने आप में एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। ड्राइंग इनटू क्वेश्चन वेदर देयर इज़ इनफ कॉमन ग्राउंड एमंग द 13 कंट्रीज़। एक सवाल उत्पन्न कर रहा है कि क्या इन 13 देशों में जो कि IPEF का भाग बने हैं, कॉमन ग्राउंड है उनके बीच में। कॉमन ग्राउंड का मतलब एक कॉमन आधार है जिसके तहत इन 13 देशों को साथ में ले करके चला जाए। दैट आर पार्ट ऑफ वेरी डिफरेंट इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स। ये जो 13 देश हैं अलग अलग इकोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट हैं। एलवेज एज वेल एज आउटलायर्स द US एंड इंडिया। और इसमें से जैसा कि आपको बताया कि 13 देशों में से 2 ऐसे देश हैं जो कि RCEP का भाग नहीं है, जैसे US और इंडिया। तो इनके साथ कैसे समन्वय बने, इसको लेकर के भी एक सवाल उत्पन्न होता है। टू सेट अ स्टैंडर्ड्स टुगेदर और बी ओपन टू इश्यूज दैट वेरी फॉर ईच कंट्री। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड तय करने की ज़रूरत है जो कि उन सब चीज़ों के बारे में जो कि वैरी करता है उनके बीच में। द US स्टेटमेंट दैट IPEF इज़ इसेंशियली फोकस्ड ऑन अमेरिकन वर्कर्स। अब देखिए US का स्टेटमेंट है कि IPEF जो है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इज़ इसेंशियली आवश्यक रूप से फोकस्ड है किस पे? अमेरिकन वर्कर्स पे। ये भी एक सवाल उत्पन्न करता है ऑन वेदर इंक्रीजिंगली प्रोटेक्शनिस्ट ग्लोबल ट्रेंड्स विल चीफ। अब एक जो है एक सवाल, मतलब US के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है कि IPEF जो है वो इसेंशियली किस पे फोकस है? अमेरिकन वर्कर्स पे। एक सवाल उत्पन्न करता है कि क्या अमेरिका एक प्रोटेक्शनिस्ट ग्लोबल ट्रेड्स के तौर पे आ रहा है? चैफ का मतलब होता है कि एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न नहीं कह सकते, एनॉयंस कह सकते हैं, यानी एक एनॉयंस के तौर पे आ रहा है। ईच ऑफ द IPEF कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज़ हैं IPEF के, हैज़ कंसिडरेबल ट्रेड इंटरेस्ट इन चाइना। जितने IPEF के जो कंट्रीज़ हैं उनका एक कंसिडरेबल ट्रेड यानी व्यापार है, एक निश्चित व्यापार है किसके साथ? चाइना के साथ। विद मोस्ट हैविंग लार्ज ट्रेड डेफिसिट, और इसमें कई ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा भी हुआ है। डेफिसिट का मतलब घाटा। सो इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ मच दे विल बी विलिंग टू साइन ऑन विद द IPF। अब इसमें कई ऐसे देश हैं जो उनका चाइना के साथ अच्छा संबंध है, कई ऐसे हैं जिनको हाल फिलहाल में काफ़ी डेफिसिट का सामना पड़ रहा है, इकोनॉमिक डेफिसिट का, ट्रेड डेफिसिट का घाटा हो रहा है, व्यापार घाटा। तो अब देखने वाली बात ये हो गई है कि क्या वो विलिंग है साइन करने पे IPEF पर। ऑलरेडी 3 एशियन कंट्रीज़, पहले ही 3 एशियन कंट्रीज़, कौन कौन एशियान कंट्री कौन कौन है? कंबोडिया, लाओस एंड म्यांमार हैव डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द फ्रेमवर्क्स लॉन्च। ये 3 देश इससे दूर रहें, यानी जो लॉन्च हुआ उससे अपने आप को दूर रखा। कौन कौन? कंबोडिया, लाओस एंड म्यांमार। एबव ऑल, इन सब के अलावे, गिवन द फैक्ट दैट, गिवन का मतलब यहाँ पे कंसिडरिंग द फैक्ट, ये फैक्ट को कंसीडर करते हुए, द US प्रीवियस इनिशिएटिव, US का जो पहले भी एक इनिशिएटिव था, क्या? द ब्लू डॉट नेटवर्क एंड
बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव हैव मेड लिटिल हेडवे। ये जो अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था, ये बहुत ही कम प्रोग्रेस किया था, यानी ना के बराबर प्रोग्रेस किया था। लिटिल हेडवे, हेडवे का मतलब होता है प्रोग्रेस, यानी ना के बराबर प्रोग्रेस किया था। यानी इसके पहले भी जो इनिशिएटिव इसके द्वारा लिए गए थे कोई खास चमत्कार नहीं दिखा पाया था। इन चेंजिंग रीजन्स इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, ये बनाया गया था कि जो रीजन है, एरियाज़ हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर नीड को चेंज करेंगे, लेकिन कोई खास कमाल नहीं कर पाया, तो क्रेडिबिलिटी की समस्या आ गई। द IPEF फेसेस अ क्रेडिबिलिटी चैलेंज। वही बात यहाँ पे कही गई कि चूँकि अमेरिका के द्वारा ये भी शुरुआत किया गया है और अमेरिका पहले भी शुरुआत किया था, उस कोई खास चमत्कार नहीं दिखा पाया, इसलिए IPEF फेस क्या कर रहा है, विश्वास की कमी है। निगोशिएशंस विल नीड टू मूव विथ बोथ काउशन एंड क्लैरिटी। अब जो निगोशिएशंस हैं, समझौता बातचीत है, इसमें ज़रूरत है कि सावधानी और स्पष्टता के साथ आगे बढ़े। बिफोर मेकिंग एनी बिग प्रोमिसेस ऑन इट्स बेनिफिट फॉर द रीजन, इससे पहले कि आप बहुत लंबा प्रॉमिस करें और इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं, उससे पहले इसको लेकर के सावधानी और क्लैरिटी की ज़रूरत है। भाषण तो खूब दिया जा रहा है, कहा बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन सच में ऐसा होगा या नहीं होगा ये पहले स्पष्ट होनी चाहिए। अमेरिका पहले भी ऐसा करता रहा है, कई फ्रेमवर्क्स बनाए हैं, कई संगठन बनाए हैं और बाद में उसको छोड़ करके भाग गया या फिर वो सही से आगे नहीं बढ़ा पाया। तो भारत को भी सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब बात आती है कॉमन एरर्स की, तो शुरुआत करते हैं पहले कॉमन एरर्स की। अगर आप पूरा पढ़े होंगे थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। A question whether there is enough common ground among the 13 countries that is part of very different economic arrangements। एक बार आप भी पढ़िए इसको और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आपको बताया गया था कि कहीं भी दैट आए, विच आए, हु आए, ये सब जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और वर्ब का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट जो पहले आता है उसके अनुसार होता है। तो दैट 13 कंट्रीज़ हैं, यानी ए प्लूरल है, और कंट्रीज़ अगर प्लूरल है तो यहाँ पे इज़ नहीं, क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए। तो इस जगह पे आप इज़ को रिप्लेस क्या कर देंगे, आर से। पहला कॉमन एरर हो गया। आइए दूसरी बात करते हैं। मिस्टर बाइडेंस विजिट्स टू जापान एंड साउथ कोरिया, attendance at the Quad Summit and helming the IPEF launch is also aimed at reassuring the Eastern Hemisphere about the US focus। इसमें एरर आपको ढूंढना है। देखिए बाइडेन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी आपको पता है ना कि इसके बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा, नाउन आएगा। तो विजिट एक वर्ड है, विजिट आपका वर्ब भी है और नाउन भी है। तो अगर रहता खाली बाइडेन, तो बाइडेन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे विजिट्स हो जाता। बाइडेन विजिट्स जो भी जगह का नाम है वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाइडेन के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। बाइडेन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, और जब एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो हम लोगों को नाउन चाहिए, इसलिए यहाँ पे विजिट्स नहीं हो करके यहाँ पे क्या होना चाहिए था, विजिट होना चाहिए। तो विजिट्स को विजिट में बदल देंगे, आपका सही हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।